Hello viewers, welcome back to our Django tutorial series, day 14. Have you ever wondered how the websites look so modern and professional? The secret is Bootstrap. It can transform your plain Django website into a modern and responsive website without writing lots of CSS code. In the next few minutes, we will learn how to add Bootstrap to our Django project in the right way. Before starting this session, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को इफ यू आर न्यू टू इट. So without further ado, let's start with our today's session. Let's now try to understand what is a Bootstrap. Bootstrap basically is a free CSS framework जो हमारी मदद करता है to create beautiful responsive websites very quickly without writing a lot of CSS code ourselves. That is what the best part is, right? So what is the simple definition of Bootstrap? It is basically a collection of ready-made CSS and JavaScript files that make our web pages look attractive and they work well on all screen sizes. ठीक है? So Bootstrap will make sure your web pages look beautiful, they look responsive, and they work equally well no matter what the screen size is of the mobile, of the tablet, and of the desktop. As simple as that. Now, instead of designing any HTML button from the scratch, we can simply write like this. ये एक बटन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू एक प्लेन HTML बटन डिफाइन कर रहा हूं. ये एक प्लेन बटन है, सिंपल बटन है और इसमें क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू दो बूटस्ट्रैप CSS क्लासेस अप्लाई कर रहा हूं. पहली बूटस्ट्रैप क्लास है BTN और दूसरी बूटस्ट्रैप क्लास है BTN प्राइमरी. इन दो बूटस्ट्रैप क्लासेस के थ्रू बूटस्ट्रैप इज ऑटोमेटिकली गिविंग दिस HTML बटन अ क्लीन, क्लियर, प्रोफेशनल लुक. एज सिंपल एज दैट. अब क्या करते हैं, इस HTML बटन एलिमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन एग्जामिन करते हैं. राइट, पहला पार्ट है बटन. ये क्या है? दिस इज द HTML एलिमेंट और इसका जॉब क्या है? इट टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट ए प्लेन बटन. ये ध्यान रखना, विदाउट अप्लाइंग एनी बूटस्ट्रैप ये जो HTML बटन बना रहे हैं इट विल लुक लाइक ए प्लेन सिंपल ब्राउजर बटन. राइट. दूसरा पार्ट क्या है? क्लास एट्रीब्यूट, जिसमें दो बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं. पहला है BTN, दूसरा है BTN प्राइमरी. So these are two Bootstrap CSS classes that will style the plain browser button. Okay, the BTN class will tell the Bootstrap that this is no longer a plain simple HTML button. Now it's a Bootstrap button. And this BTN primary class will apply the primary Bootstrap theme, which means the button will get which color? Blue color. और ये जो BTN class है, it tells the Bootstrap to style the button element as a bootstrap button and add some functionality to the button, like the button will have proper padding, it will have rounded corners, it will have better font, it will have a pointed cursor, and it will have nice clear spacing. अब ये ध्यान रखना, without applying the BTN class, this BTN primary class won't work correctly. Okay, so for this class to work properly, you also have to use BTN class along with it. Now this BTN primary class decides the button's color or the theme. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप BTN primary class अप्लाई करते हो उसका क्या आउटकम होता है? The button will have blue background and it will have white text. As simple as that. अगर Bootstrap को यूज करना है तो उसके दो मोड्स हैं. पहला ऑफलाइन मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड. जहां तक ऑनलाइन मोड की बात है, we can use Bootstrap directly from the internet using CDN. CDN means Content Delivery Network. Now, what exactly is CDN? CDN basically is a network of servers which stores all our Bootstrap files online, allowing us to use Bootstrap without downloading it again and again. How it works? Browser क्या करेगा? It will send a request to the CDN. CDN क्या करेगा? It will send back the entire Bootstrap CSS files which contains CSS for hundreds of Bootstrap classes back to the browser. Browser क्या करेगा? इनको डाउनलोड कर लेगा. कहां पे? Into its cache, and it will start to apply the styles. So
The classes like BTN primary, container will now start to work. As simple as that. लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो डाउनलोड है क्या हर बार होगा? नहीं. फर्स्ट विजिट में क्या होगा? ब्राउजर विल डाउनलोड all the bootstrap files which includes the css files as well as the javascript files. अब later visit या subsequent visits में if the files are already there in the browser's cache और cache आपका expire नहीं हुआ है and they are still valid means no version change has happened, no updates have happened, the browser will reuse them instead of downloading them again. As simple as that. I hope this is clear. ठीक है. अब जहां तक ऑफलाइन मोड की बात है, बूटस्ट्रैप को आप कैसे यूज करोगे? बाय डाउनलोडिंग दी बूटस्ट्रैप फाइल्स एंड कीपिंग देम ऑन आवर कंप्यूटर और इन आवर प्रोजेक्ट फोल्डर. एज सिंपल एज दैट. अब ये देखो हाउ इट वर्क्स. वी मैन्युअली डाउनलोड द बूटस्ट्रैप्स CSS and JavaScript files and store them inside our project folder. We make links to these downloaded files present in our project folder. Okay. And the best part is no internet connection is required. Why? Because all the required files, whether it's Bootstrap CSS files or Bootstrap's JavaScript files, all are present on our computer since they have been manually downloaded. I hope this thing is clear. चलो ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि बूटस्ट्रैप को हम दो मोड्स में यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन. अब क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं. स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन मोड से. इसके लिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे. यहां पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करो, getbootstrap.com. ठीक है, ये इसका लैंडिंग पेज है, इसका होम पेज है. अब इसको ऑफलाइन में यूज करना है तो थोड़ा सा नीचे आओ. इसके दो तरीके हैं. एक तो ये है डाउनलोड. ठीक है, इसका वर्जन है 5.3.8. एक तरीका ये है और दूसरा क्या है, यहां डॉक्स पे क्लिक करो. डॉक्स. ठीक है, डॉक्स पे क्लिक हुआ और यहां पे ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा डाउनलोड. मैं इस पे क्लिक कर देता हूं. ये देखो कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, वर्जन वही है 5.3.8. तो इस पे क्लिक करो डाउनलोड पे. ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया आपका. 1 डाउनलोड इन प्रोग्रेस. ठीक है, हो गया. इस पे क्लिक करो. ठीक है जी, तो ये आपकी बूटस्ट्रैप फाइल डाउनलोड होगी. ठीक है, वर्जन वही है 5.3.8. अब ये जो बूटस्ट्रैप जिप फाइल है, इसको कैसे यूज करोगे? पहले इसको करोगे अनजिप. अनजिप करते ही आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक CSS फोल्डर और एक JS फोल्डर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर. ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल्स हैं तो इनको कहां प्लेस करोगे? अपने जेंगो प्रोजेक्ट में अंडर स्टैटिक फोल्डर. क्यों? जितना भी स्टैटिक कंटेंट है किसके अंडर हम प्लेस करते हैं? स्टैटिक फोल्डर में. और जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसको कहां प्लेस करते हो? टेम्पलेट्स फोल्डर में. ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमें ये क्लियर है. अब चलते हैं VS कोड में और इस बूटस्ट्रैप फाइल को स्टैटिक फोल्डर में प्लेस करते हैं. तो ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है. ये मेरी जेंगो ऐप है जिसका नाम है बूट ऐप और ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप. और इसके अंदर बूट ऐप के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ये मेरी HTML फाइल है. बहुत सिंपल है. इसमें सिर्फ मैंने H1 एलिमेंट यूज किया है और हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया है. ठीक है जी, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये हम पहले कर चुके हैं. तो अब क्या करना है, इस जेंगो प्रोजेक्ट में हमें बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करना है ऑफलाइन मोड में. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट्स फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर नहीं है. तो स्टैटिक फोल्डर बनाते हैं. बूट ऐप स्टैटिक फोल्डर बनाओ. बन गया. इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर रहे हैं. अब बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर वो जो बूटस्ट्रैप जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको अनजिप करके इसके अंदर हमें प्लेस करना है. ठीक है, तो वो करते हैं पहले. ये मेरा डाउनलोड फोल्डर आ गया, इसको करो अनजिप. एक्सट्रैक्ट ऑल, इसको करो डाउनलोड्स में ही रखो. ठीक है, करो एक्सट्रैक्ट. अब ये देखो ये फोल्डर बन गया आपका बूटस्ट्रैप 5.3.8. क्लिक करो. ये देखो हमने डिस्कस किया था ना कि जैसे इसको अनजिप करेंगे दो फोल्डर्स बनेंगे, एक CSS और एक JS. अब क्या करेंगे, इन दो फोल्डर्स को मूव करेंगे अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर, बूटस्ट्रैप जो फोल्डर है उसके अंदर.
ठीक है, इसको मूव करो यहां से और चलते हैं अपने स्टैटिक फोल्डर में। ये मेरा बूटस्ट्रैप फोल्डर आ गया, जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेरी ऐप है और ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट है। ऐप में आ जाओ, स्टैटिक में आ जाओ, बूटस्ट्रैप में आ जाओ, यहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो जीएस फोल्डर भी आ गया हमारा, सीएसएस फोल्डर भी आ गया। अब चलते हैं वीएस कोड में। ठीक है, वीएस कोड में आ गए। अब ये देखो आ गया, ये देखो दोनों फोल्डर्स आ गए, जेएस और सीएसएस। किसके अंडर? बूटस्ट्रैप फोल्डर में, जो किसके अंडर है? स्टैटिक के अंडर। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं और देखते हैं ब्राउजर में क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, टर्मिनल ओपन करो, सर्वर स्टार्ट करो, यहां पे क्लिक करो, तो ये आउटपुट आ गया। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो ही आया। अब इस पे अप्लाई करते हैं बूटस्ट्रैप। देखना इसका अपीयरेंस अब चेंज हो जाएगा। तो ऑफलाइन में बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। चलते हैं वीएस कोड पे। तो सबसे पहले यहां पे आ जाओ, एचरेफ जेंगो टेम्पलेट डालो, स्टैटिक फोल्डर कौन सा है? बूटस्ट्रैप स्लैश सीएसएस स्लैश बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस। लेकिन हाँ, एक चीज भूल गए यार, स्टैटिक को लोड भी तो करना है, तभी तो चलेगा ये कमांड, नहीं तो एरर आ जाएगा। लोड स्टैटिक। ठीक है जी, ये हो गया। अब जेएस को भी करना है आपको। जेएस कब करते हो? अगर जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है, हमेशा जो जेएस स्क्रिप्ट होती है वो बॉडी का लास्ट पार्ट होती है। स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू स्टैटिक बूटस्ट्रैप स्लैश जेएस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट min डॉट जेएस। ठीक है, इस फाइल को मेमोराइज कर लो। ठीक है जी, तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल भी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे सीएसएस फाइल इंप्लीमेंट होगी, यहाँ पे जेएस फाइल आपकी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे लिख भी दो ऑफलाइन मोड फॉर सीएसएस फाइल, कमेंट कर दो। ऑफलाइन मोड फॉर जेएस फाइल। तो बूटस्ट्रैप ऑफलाइन में इंप्लीमेंट हो गया। अब इस जेंगो प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं। अब देखना, ये जो हेलो वर्ल्ड है इसका अपीयरेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा। ब्राउजर में जाओ, देखो अब ध्यान से देखना, ये पहले का आउटपुट था जब हमने बूटस्ट्रैप नहीं लगाया था। अब देखना इसका अपीयरेंस कैसे चेंज होता है। देखा, हो गया ना, बढ़िया आ गया ना, इंप्रेसिव हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप ऑफलाइन मोड में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। अब इंटरनेट है चाहे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट सीएसएस फोल्डर और जेएस फोल्डर जो बूटस्ट्रैप का है वो हमने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया है और उस पर सुटेबल लिंक्स लगा के हमने उन फाइल्स को अपने जेंगो प्रोजेक्ट में यूज कर लिया। एज सिंपल एज दैट। एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप क्लासेस भी देख लेते हैं, वो जो बटन वाला था। ठीक है, उसको भी एक बार इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन क्लास डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल एचटीएमएल बटन। ठीक है, अब इस पे लगाते हैं बूटस्ट्रैप क्लास। कैसे लगाओगे? क्लास एट्रीब्यूट से बीटीएन, ये बूटस्ट्रैप बटन हो गया, क्योंकि ये एचटीएमएल बटन को स्टाइल करेगा एज बूटस्ट्रैप बटन। अब इसको डिफॉल्ट कलर दो बीटीएन प्राइमरी। ये कौन सा होता है? ब्लू। ठीक है, सेव करो और चलो ब्राउजर में चलो, इसको करो रिफ्रेश। ये क्या हुआ? अरे यार,
वो नाम देना भूल गया ना। ये देखो यहाँ पे सबमिट बटन नहीं लिखा, तभी वो छोटा सा हो गया था। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो तो ये देखो यार बटन आ गया। और क्योंकि बीटीएन प्राइमरी क्लास लगाया था तो बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्लू, और टेक्स्ट हुआ व्हाइट, राइट। अब अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है उसके लिए क्लास होती है मार्जिन, मार्जिन स्टार्ट, MS। तो वो भी करके देखते हैं। यहां पे लिखो मार्जिन स्टार्ट, ओके, वैल्यू दे दो से 3। अब देखना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। 3 क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेसिंग। किसमें होता है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है, रैम होता है, REM। यहां पे मैं कमेंट्स में लिख देता हूं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, REM। ठीक है, HTML से आप रिकॉल कर सकते हो REM। और वन REM क्या होता है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 1 REM 16 पिक्सल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट रूट होता है कौन सा होता है, HTML। इसका फॉन्ट साइज क्या होता है, इसका फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल। ठीक है, दैट्स व्हाई 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। अगेन आई रिपीट, दिस इज बिकॉज द ब्राउजर्स डिफॉल्ट रूट which is HTML element has a font size of 16 pixel. That's why 1 REM is equal to 16 pixels. As simple as that. ठीक है, इसको सेव करो और ब्राउजर में जाके इसका आउटपुट देखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करो, देखना थोड़ा सा ये राइट को मूव हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, अरे वो कमेंट नहीं किया होगा यार, देखा ये कमेंट नहीं किया। ओके अब ठीक है, इसको रिफ्रेश करो, ये देखो थोड़ा स्पेसिंग बढ़ गया। अब अगर इसको बिल्कुल राइट पे लेकर आना है, यहां पे कैसे लाओगे, उसके लिए आपको फ्लेक्स कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे क्या करते हैं, एक दूसरा बटन डिफाइन कर लेते हैं, डिव डिफाइन करो, क्लास इज इक्वल टू dflex। बटन, इसको कॉपी कर लो, MS ऑटो लिखो यहां पे, दैट्स इट। इसको सेव करो, अब इसको करो रिफ्रेश, देखो आ गया, यहां पे लास्ट में आ गया। सेंटर में लाना कैसे लाओगे वो भी देख लो, एक और बटन डिफाइन कर लो, यहां पे क्लास करो टेक्स्ट सेंटर, और इसको कॉपी कर लो, यहां पे कलर चेंज कर दो, सक्सेस, सक्सेस मतलब ग्रीन, दैट्स इट। ठीक है, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, ठीक है, ये देखो सेंटर में आ गया, राइट। एक और तरीका देखते हैं, क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, फ्लेक्स कंटेनर को यूज करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको कर लो डेंजर, ये शायद रेड कलर होगा। ठीक है, सेव करो, ब्राउजर पे चलो और रिफ्रेश करो, इसको करो रिफ्रेश, ठीक है, सेंटर में आ गया, और डेंजर की वजह से इसका कलर रेड हो गया। अब इसको पूरा स्ट्रेच करना है, वो कैसे करोगे वो भी देख लो। इसको क्या करो, हाँ ये ले लो,
विड्थ कर दो 100, एज सिंपल एज दैट। सेव करो, ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करो, ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग द विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। हो गया। तो ये कुछ सैंपल कोड्स थे, आई होप आपको सारा ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को ऑनलाइन मोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि ये सारा काम हो रहा था ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अब आते हैं ऑनलाइन मोड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप, अब हमें करना है इसको ऑनलाइन मोड में। होम पेज में आ जाओ, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, ये देखो ये रहा, इंक्लूड वाया सीडीएन, क्योंकि सीडीएन के थ्रू ही तो इंप्लीमेंट होता है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, ये सर्वर्स होते हैं, ओके, जहां पे आपके बूटस्ट्रैप फाइल्स होस्टेड होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये सीएसएस का लिंक है और ये जेएस का लिंक है। सिंपली आपको क्या करना है, इनको कॉपी करना है और अपने वीएस कोड में इसको पेस्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं और चलते हैं वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड में आ गए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे, जो ऑफलाइन वाला हमारा काम है उसको कमेंट कर दो। ठीक है, इसको पहले बंद करो, नीचे भी इसको बंद करो। अब आ जाओ ऑनलाइन में, ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन। इसको कमेंट करो और इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, वो लिंक हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया ना बूटस्ट्रैप min.css। ठीक है, अब सेम काम करना है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो उसको कॉपी करो और यहां पेस्ट करो। यहां इसको कॉपी करो, कॉपी हो गया। वीएस कोड में आओ, ऑनलाइन मोड, इसको पेस्ट करो। ठीक है जी, तो अब क्लियरली देख लो, जो ऑफलाइन है वो हमने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब क्या हो, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो प्योर ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन है बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। सेव करो, इस टैब में आओ और इसको रिफ्रेश करो सिंपली। ठीक है, ये देखो ऑनलाइन मोड में भी हमारा चल गया। आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, काम तो वही हो रहा है ना, भले आप ऑफलाइन से कर रहे हो चाहे ऑनलाइन से कर रहे हो, आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। राइट, तो आई होप दिस होल प्रोसेस ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप इन द ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड इज वेरी मच क्लियर। तो ठीक है यार, फिर क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।